Hello everyone and welcome back to my channel. Today I'm going to take you to the marble city of the heart of India. Let's go visit Jabalpur. Here we will witness the divine Narmada Aarti, the breathtaking view of Dhuandhar waterfall, marble rocks at Bheraghat and much more. So without further ado, let's go. It's 5 a.m. in the morning now and I need to leave by 6 because I have a train to catch at 7. So now I need to go and get ready. So let's go. So I'm all set to leave the house and go on the trip. I'm very excited. Let's go. It takes around 7 hours to reach Jabalpur from Bhopal by a train. After reaching Jabalpur, we just checked in into our Hotel Polar Max, and here is the short room tour. Now we are ready and we are heading out to our first destination, which is गौरी घाट. मैं और मम्मी दोनों फुली रेडी है गौरी घाट जाने के लिए. थोड़ा ट्रेडिशनल पहना है हमने क्योंकि हम नर्मदा घाट जा रहे हैं और वहाँ पे आरती होने वाली है, इसलिए वी आर वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस टुडे. तो अब बस चलते हैं. सनसेट भी इंजॉय करना है घाट पे और आरती भी देखनी है, नर्मदा आरती. तो चलिए अब चलते हैं नर्मदा घाट की तरफ. We took an auto rickshaw to reach Gauri Ghat and it was around 150 rupees only. You can see these beautiful decorated boats lined up at your service at the ghat. And you can't just look at these beautiful boats, you must take a ride. These boats will take you to the Narmada Mata temple, which is surrounded by the water, and the only possible way to reach there is through these boats. After enjoying the boat ride and train to Narmada Mata, we were waiting for the Maha Narmada Aarti. हम लोग नर्मदा घाट पे बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर सजा हुआ है. महा आरती की तैयारी हो रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आरती शुरू होगी. हमें कैसा लग रहा है? हाँ, मम्मी गंगा आरती देख चुकी है, नर्मदा आरती नहीं देखी है, तो आज नर्मदा आरती भी देख लेंगे. After witnessing the most divine Narmada Aarti, we headed to have some food. भूख के मारे हम दो बेचारे डोमिनोज में आते हैं पिज्जा. We just enjoyed our pizza and called it a day. Good morning everyone. Today is our day 2 in Jabalpur. Yesterday we just went to Gauri Ghat. We enjoyed a nice sunset there. We had a delightful sight of seeing the Narmada Aarti, which was really beautiful. आज हम बाकी सारे साइट्स जाने वाले हैं यहाँ पे. मोस्टली भेड़ाघाट एंड धुआंधार, विच इज़ धुआंधार वाटरफॉल्स. बहुत ही प्यारा साइट होता है ऐसा. मैं पहले धुआंधार देख चुकी हूँ तो मुझे पता है वो कितना सुंदर होता है. बट लेट्स सी कि अभी क्या चीज़ हुआ है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब लास्ट टाइम आई वेंट एंड saw this धुआंधार waterfalls. तो आज वो फिर से देखने वाली हूँ and many other places. So
लेट्स प्लान टू एंजॉय अवर डे टू। अब मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होने, ब्रेकफास्ट करनी है, उसके बाद हमें निकलना है आज के पूरे साइट सीइंग टूर के लिए। सो लेट्स गो। For sightseeing today, we rented a car for rupees 2000 for the whole day. We had quite a wholesome breakfast before heading out. सो वी आर नाउ रेडी, हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं और अब रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट टुडे इज़ कि मॉम एंड मी वी बोथ आर ट्विनिंग टुडे। वी आर वेयरिंग सेम टॉप एंड डिफरेंट कलर। वी हैव इवन गॉट द सेम ड्रेसेस। मम्मा दिखाओ अपने। As we started our day, our first stop was this Balancing Rock Point. So it is famous because the big rock is just balancing on a very small point. Our next stop was Madan Mahal, which is also known as Rani Durgavati Fort. हम लोग जा रहे हैं मदन महल की तरफ और ये सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। It's just ruins. इसको देखने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। Oh my God, more stairs. मम्मी की हालत देखिए। मम्मी, खंडर देखने के लिए इतनी मेहनत करते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मम्मी यार एडवेंचर हमेशा अच्छा होता है। मदन महल जाने की सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। चढ़ते चढ़ते हमारी हालत ख़राब हो गई है। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। दिख भी नहीं रहे क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं भाई। थक गई हूँ मैं और मम्मी की हालत और ख़राब हो चुकी है। हम रुक के चढ़ रहे हैं फिर भी ये हाल है। पता नहीं यहाँ रहने वाले लोग कैसे आते थे भाई इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के। ये है मेंटेनेंस। यू कैन नॉट इवन रीड कि ये महल क्या है, क्यों है। फाइनली महल पहुंच गए हैं। द ruins ऑफ द महल पहुंच गए हैं। सो यू कैन सी ऑल दिस। दिस इज द मेन महल। ये कुछ ग्रेनाइट पत्थर के पहाड़ पर है। समथिंग लाइक दिस वाज रिटन देयर बट आई कुडंट रीड इट बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन कि वो टूटा हुआ है जिस पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एक तो वो इन्फॉर्मेशन वाला पूरा टूटा हुआ है, ऊपर से मदन महल के अंदर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। द स्टेयर्स सही नहीं है अभी, तो यू कैन नॉट गो इनसाइड ऑल्सो। सो आई वोंट से दैट इट्स वर्थ, बट ठीक है, यू कैन कम अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो स्पेंड करने के लिए यहाँ ये रूइंस देखने के लिए आ सकते हो, बिकॉज यू वोंट इवन नो कि क्या देख रहे हो। सो सबसे पहले तो यहाँ पे वो रिपेयर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन माई ओपिनियन। ये देखिए मेरी एडवेंचरस मॉम कहाँ पर है, स्पॉट हर। मदन महल देखने के बाद हम लोग अब वापस नीचे जा रहे हैं। रास्ते में ही गुफा वाले भोलेनाथ हैं, तो हम लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं। यहीं स्टेयर्स उतरते वक्त ही आपको मिल जाएंगे, तो हम लोग अब वहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मदन महल के बाद अब शारदा माता के मंदिर जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। फिर से सीढ़ियाँ। शारदा माता के दर्शन करने के बाद अब बारी थी हाईलाइट ऑफ दिस ट्रिप,
धुआंधार वाटरफॉल्स की। वाटरफॉल्स तक जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप रोपवे से जा सकते हैं या फिर वॉक करके जा सकते हैं। अगर आप चल कर जाएंगे तो आपको रास्ते में ये सारी शॉप्स दिखेंगे जहाँ पे मार्बल के बहुत सारी मूर्तियाँ, शिवलिंग और बहुत सारी ज्वेलरी और डिफरेंट आइटम्स दिखेंगे, जिसको आप शॉपिंग करते हुए यहाँ पे शॉपिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। मैं अभी धुआंधार के पास हूँ। बहुत इंसेन क्राउड है यहाँ पे। ऊपर से ब्रिज बंद कर दिए हैं, वो स्पॉट जहाँ से बहुत अच्छा व्यू था वो बंद कर दिए, तो बिल्कुल ही मन खराब हो गया है मेरा। बट लेट्स सी कहीं और से अगर अच्छा व्यू दिख जाए तो। यू सी द धुआं इन द धुआंधार, इट्स ब्यूटीफुल। अगर यहाँ जाने देते ना देन इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल साइट, बट बंद है वो। स्टिल इट्स मैजिकल। फाइनली ये जगह मिल गई हमें, तो बहुत शांति लग रही है। अदरवाइज़ मेरा थोड़ा मन ख़राब हो गया था बिकॉज वो ब्रिज पे जाना मना हो गया है और वहाँ से व्यू नहीं देख पा रहे थे। बट एटलीस्ट दिस इज़ नाइस। इतना घूमने के बाद कुछ खाना तो बनता है। पेट पूजा के बाद हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वाज चौसठ योगिनी टेम्पल। तो हम जा रहे हैं चौसठ योगिनी टेम्पल, जहाँ पे फिर से इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। तो आज हमारा पूरा वर्कआउट हो गया है, आई थिंक महीने भर का सारा जितना वर्कआउट करना चाहिए। तो अभी हम लोग चौसठ योगिनी टेम्पल में हैं और यहाँ पे अंदर फ़ोटोज़ लेना मना है, लाइक गर्भगृह की फ़ोटोज़ नहीं ले सकते, बट आप अंदर देख सकते मेरे पीछे। और ये पूरा सर्कल में सारी 64 योगिनी ये खंडित मूर्तियाँ हैं जो हैं, बट अच्छा है, इट्स अ हिस्टोरिकल साइट टू सी। मम्मा enjoying the way back because अभी स्लोप है, आने के टाइम हालत ख़राब थी। अब हम पहुंच गए हमारे लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में आप मार्बल रॉक्स देख सकते हैं। नर्मदा नदी के दोनों तरफ मार्बल की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। जहाँ ये बहुत ही फेमस शूटिंग साइट भी है, तो आप ये साइट्स बहुत सारी मूवीज़ में देख चुके हैं। ये नज़ारे आपने अशोका, मोहिंजोदारो जैसी मूवीज़ में देख रखे हैं। ये बोट राइड सिर्फ 100 रुपीज़ पर पर्सन पे अवेलेबल है और जो गाइड है वो बहुत ही मज़ेदार है। वो आपको सारी साइट एक्सप्लेन करते हुए कौन सी मूवी में क्या देखा है, कहाँ पे क्या शूट हुआ है, विच रॉक इज़ वॉट, एवरीथिंग वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ले जाएंगे। बोट राइड के बाद यहाँ पर खूबसूरत सनसेट का मज़ा लेना भूलिएगा मत। ये बोट राइड एंजॉय करने के बाद और खूबसूरत सनसेट देखने के बाद हम चले गए वापस अपने होटल की तरफ। तो हम लोग निकले हैं जबलपुर का स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। अभी हमने मस्त गुपचुप खाया है, इसके बाद हम लोग मोमोज ट्राई करने वाले हैं, चाट ट्राई करने वाले हैं। तो आज की शाम जबलपुर के स्ट्रीट फूड के नाम।
इतने सारे स्ट्रीट फूड ट्राई करने के बाद डिनर का तो सवाल ही नहीं था। वी जस्ट वेंट बैक टू आवर होटल और सो गए। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ आवर लास्ट डे हियर इन जबलपुर। वैसे इस लास्ट डे में ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, हम लोग निकलने ही वाले हैं आज। वी हैव आवर ट्रेन टू कैच एट 4 in the evening, सो हम कचनार सिटी जाने वाले हैं एंड ऑल्सो म्यूज़ियम, रानी दुर्गावती म्यूज़ियम। सो हम अगर है यहाँ पे तो वाई नॉट कवर ऑल द प्लेसेस। सो वी विल बी डूइंग दैट टुडे एंड देन उसके बाद वी आर गोइंग बैक होम। सो लेट्स सी क्या है। कचनार सिटी में बहुत बड़ा शिवा आइडल है, तो हम वो देखने जा रहे हैं आज। सो लेट्स गो। आज घूमने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करने वाले थे। हमने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा इसमें ही ट्रैवल किया है बिकॉज़ दीज आर वेरी वेरी चीप हियर इन जबलपुर। ये 76 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है और इसके ही नीचे एक दरवाज़ा है जिसके अंदर से आप इस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शाए गए हैं। तो हम लोग अभी कचनार सिटी शिव टेम्पल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इट्स 76 फीट टॉल शिवा आइडल जो कि बहुत ही सुंदर है। और बस अब हम लोग देख चुके हैं, अब निकलने वाले हैं यहाँ से। बट इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। पीछे पूरा ग्रीनरी है, पार्क जैसा बनाया हुआ है, बैठने के लिए जगह है। इट्स अ वेरी वेरी बिग एरिया, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल और सबसे सुंदर तो है। तो हम लोग दर्शन करने के बाद वापस जा रहे हैं। कचनार सिटी से बाहर निकल रहे हैं। ये शिव जी की मूर्ति आप पीछे देख रहे हैं। मम्मी कैसा लगा? बहुत सुंदर मूर्ति है, गुफा भी बहुत सुंदर है। हाँ, गुफा के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ बहुत ही सुंदर है। सारे ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्यारे हैं और ये भी बहुत सुंदर है। बट अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं रानी दुर्गावती म्यूज़ियम। तो चलिए चलते हैं म्यूज़ियम। वहीं कचनार सिटी के बाहर हमें फिर से एक ई रिक्शा मिल गया और हम एक बहुत ही मिनिमल चार्ज से पहुंच गए रानी दुर्गावती म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में बहुत ही पुराने लाइक 10th सेंचुरी 8th सेंचुरी के विष्णु जी के आइडल्स हैं। Obviously they are not in the best shape, but this is just fascinating to see how beautiful the sculptures are. इतने छोटे छोटे कॉइन्स। We had a nice time here, diving deep into the history, but now it was time for us to leave and go have our lunch.
तो हम लोग अभी रेल कोच रेस्टोरेंट के अंदर हैं और खाना बहुत ही टेस्टी है। हमने स्पेशल वेज थाली ऑर्डर की है। मम्मा कैसा है खाना? बहुत सच में विद द प्राइस दैट दे हैव, इट्स जस्ट 170 रुपीज़ फॉर अ स्पेशल थाली एंड देयर इज सो मच इन इट एंड इट्स रियली वेरी वेरी टेस्टी। तो हम लोग अभी लंच करने के लिए यहाँ आए थे रेल कोच रेस्टोरेंट में, जो कि खाना बहुत ही टेस्टी है इस रेस्टोरेंट का। और तो अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ देख रहे हैं तो नहीं है, अदरवाइज़ खाने के लिए ये बहुत बहुत अच्छी प्लेस है। और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में जबलपुर में आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 से बाहर आना है और उसके बाद 100 मीटर्स वॉक करेंगे तो दिख जाएगा आपको ये। इट्स वेरी नाइस प्लेस। एक बहुत ही फ़नी चीज़ मैं बताती हूँ। ये रहा रेलवे स्टेशन के अंदर जाने का रास्ता, तो आप ये देख सकते हैं। और कहाँ है मेरा होटल, दिखाती हूँ, ये रहा। नहीं सो इट्स जस्ट नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो इतना पास रेलवे स्टेशन के ये हमें नहीं पता था। पूरे टाइम हमने अनाउंसमेंट सुनी है सारी ट्रेन की, तो मेरे को और मम्मी को याद हो गया है कि जबलपुर में कौन कौन सी ट्रेन आती है और कितने बजे आती है। Our Jabalpur trip. Finally, we are in train going back to home. तो हमारा जबलपुर का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो पे किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए enjoy your life with My Laudable Life.